Namaskar, I am Sachin Sharma. I am a numerologist, a Vastu specialist, mentor to programs on money magnetism and power magnetism. But there is one more science which I want to talk to you about today, and that is gems and its impact on us. Gemology के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं. Before I do that, please subscribe to my channel, share the link with everybody else as well, so people get to know about this. I am at www.sachinsharma.com. I spell Sachin with a double N. So let's talk about the gems. Natural है, rocks है, a part of the earth है, takes years and years and years to form. So obviously हर gem की एक अपनी property होती है. Like the earth surface, gems तो relate किससे करेंगे? Planet से ही तो करेंगे. They are also affected by the planet just the way humans are or anything else is. Now they develop a specific property जिसकी वजह से they become very beneficial to us. So fundamentally gems का दो तरीके से देखा जाता है. एक होता है transparent gems, emeralds है, rubies है, yellow sapphires है, blue sapphires हैं, ये transparent है. उसको जिस तरह से काटा जाता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे बनता है और उसका फैलाव मतलब उसका स्प्रेड एंड द कट दैट विल कैप्चर द विबग्योर से द लाइट फ्रॉम द सन. विबग्योर की लाइट को कैप्चर करेगा, उसी कलर को अब्सॉर्ब करेगा जिस कलर का स्टोन है और उस कलर की जो इन्फ्लुएंस है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में इन्फ्यूज करेगा. ये ट्रांसपेरेंट स्टोन्स करते हैं, ये लाइट को अब्सॉर्ब करके इन्फ्यूजन करते हैं. वो फिर आपकी थेरेपी है, वो आपकी हेल्प मिलती है. जो ओपेक स्टोन्स होते हैं, कोरल हुआ, पर्ल हुआ, मूनस्टोन हुआ, लैब्राडोराइट कैट्स आई हुआ, ओपल हुआ, when they are opaque they don't absorb the light, they absorb the body heat. ये body heat को absorb करते हैं and because the surface is warm through the sunlight ये उसको mix करके आपकी body से negativity या toxins को निकालते हैं. So opaque and transparent stones को जब आप खरीदते हैं तो ट्रांसपेरेंट स्टोन्स का नेचुरल होना ज्यादा जरूरी है कि उसके बजाय कि वो बिल्कुल ही क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो. क्रिस्टल क्लियर ज्वेलरी के लिए अच्छा लगता है, बट अगर नेचुरल स्ट्रीक्स है, इसको इन्फ्यूजन कहते हैं, मतलब मिनरल उसके अंदर है, सो इट इज ओके. उसको कमर्शियल क्वालिटी कहते हैं बिकॉज आप क्वालिटी जिस हिसाब से बेचते हैं मार्केट में वो तो जितना साफ है उतना महंगा है क्योंकि वो ज्वेलरी की तरह यूज हो रहा है. ओके, नाउ सो वी विल यूज usually the second grade stones because they are very powerful and for a normal person they don't cost as much. But I have all the options because I have a whole team in Jaipur and we pick up lots from the auctions. हम auction से lots उठाते हैं, पुजारी हमारे पास हैं, labs हमारे पास हैं, सारे चीज सर्टिफाई करके कारीगर की हमारे पास टीम है और ये आज नहीं, ये 19 साल से हमारे पास. And we have been sending stones now to 16 to 17 countries as well as 45 cities in India as a remedy. So what does the remedy mean? How does it work? अगर आप डेट ऑफ बर्थ आपका 1 है, 1 बॉर्न का मतलब क्या हुआ? अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 है या 10 है या 19th है या 28th है तो सिंपल है, 1 है, सन का मतलब है रूबी पहन लिया. बट डेट ऑफ बर्थ हमारे को तब तक इफेक्ट करती है जब तक हम 36 साल तक होते हैं. मोस्ट इफेक्टिव प्लैनेट टू look at is your date of birth. 36 के बाद तो ट्रांजिशन आना शुरू हो जाता है. फिर जब माइलस्टोन्स आते हैं लाइफ में, 36th ईयर, 42nd ईयर, 46th ईयर, 50th ईयर, 60th ईयर, the whole combination of the planets will change. So while ruby will make sense till one age, I may shift the remedy to another stone depending upon the date, month and year and the date of birth and the name combination. बहुत बारी मेरे से क्लाइंट्स पूछते हैं कि साहब नाम चेंज नहीं करना हो तो क्या करें, कोई और ऑप्शन होती है कि नहीं होती? Then there is a combination of mantras and stones we can work for at least some percentage of it as a remedy. जहां हम नाम चेंज नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल जहां पे वीजा में आपका नाम लिखा हुआ है, आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, then we work with the gems and the mantras to replace the option of changing a name. So for a number 1 born person, it's the ruby. Let's talk about number 2. जहां पे आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख है, 11 तारीख है, 20 तारीख है, 29 तारीख है, 2, 11, 20 और 29. मून का क्या पावर होती है? मून
surface of the oceans का पानी खींचता है. It creates tidal waves on the surface of the ocean. आपके हमारे अंदर भी 73% तो वाटर है. अगर आपका डोमिनेटिंग प्लैनेट मून है, मतलब आप 2 तारे के 11 या 20 या 29 से पैदा हुए हो, तो आपको मून बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट करता है. मूड स्विंग्स होते हैं, तो उसके लिए हमेशा माइंड पे इंपैक्ट आता है मून से. माइंड का मतलब हुआ मोती, पर्ल और मूनस्टोन, डिपेंडिंग के कितना सिविरिटी है, कितना ज्यादा माइंड जो है स्ट्रेस में है. लेकिन ये एक सपोर्ट स्टोन होता है, पर्ल और अ मूनस्टोन. इसके साथ एक मेन स्टोन लगता है, उसको कहते हैं लैब्राडोराइट कैट्स आई. कैट्स आई जिसको लसुनिया कहते हैं, उसकी 7 तरीके की फैमिलीज, उसमें ना 7 तरीके के वेरिएशंस होते हैं, जिसमें से मोस्ट इफेक्टिव होता है लैब्राडोराइट कैट्स आइज. बट अगेन मून की अपनी पावर बहुत वीक होती है. इट्स अ वीक प्लैनेट. ऐसा ना हो कि आपका डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, जिसको हम लाइफ पाथ कहते हैं, जिसको हम कई बार एक्सप्रेशन नंबर या डेस्टिनी कहते हैं, आप उसको समझ के चलिए. आपका जो डेट है और जो आपका मंथ है और जो आपका ईयर है, उसको जोड़ के जो नंबर बनता है, अगर वो बहुत डोमिनेटिंग नंबर है तो मून तो बहुत कमजोर है, तो पर्ल तो लगेगा, मूनस्टोन भी लगेगा, वो तो लैब्राडोराइट कैट से हट जाएगा, उसकी जगह उस डोमिनेटिंग प्लैनेट का स्टोन डालना पड़ता है. ये देख के ही समझ आता है, चार्ट की बात समझ आता है कि इसको कैसे इफेक्ट करेंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको मैं एक स्टोन्स के बारे में बात कर रहा हूं कि आप पहन तो लेते हैं, लेकिन आप पंडित से पूछिए या जिसने भी आपको रेकमेंड किया है कि इसको उतारना कब है. हर एक स्टोन की एक लाइफ होती है. एवरेज स्टोन लाइफ, फॉर एग्जांपल नॉर्मल स्टोन्स जो ट्रांसपेरेंट स्टोन्स होते हैं, ये 8 से 10 साल तक चल जाते हैं. जो दूसरे सॉफ्ट स्टोन्स होते हैं जैसे ओपल है, ये 3-4 साल में खराब हो जाता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका कौन सा फ्यूचर पीरियड चल रहा है, क्योंकि फ्यूचर पीरियड में आपके एक्सीडेंटल लिखा है, या बहुत शनि भारी आ गया है, या मंगल से हार्ट या डायबिटिक कंडीशंस आ गई हैं, तो फिर मैं एक ही स्टोन नहीं चलाऊंगा. मैं एक स्टोन के बाद खत्म करके या 7-8 साल के बाद फिर मैं 9 साल का दूसरा वेरिएशंस डालूंगा, अगर जेमोलॉजी को प्रॉपर्ली काम करना है तो. सो देयर इज नो थंब रूल, देयर इज नो स्टैंडर्ड टू से ये डेट ऑफ बर्थ है साहब ये पहन लीजिए, क्योंकि इसकी वेरिएशंस में नाम, फ्यूचर पीरियड और आपका डेट मंथ ईयर, जिसको हम लाइफ पाथ कहते हैं, 3 चीजें डेट ऑफ बर्थ के साथ लगाई जाती हैं, तो पता है कि भाई कौन सा जेम काम करेगा. तीसरी चीज, अब मैं आपको फॉर एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं, तो उसके हिसाब से एक और एग्जाम्पल देता हूं. नंबर 3 मीन्स व्हाट? गुरु, 3rd बॉर्न, 12th बॉर्न, 21st बॉर्न, 30th बॉर्न, ये डेट ऑफ बर्थ हो गई. अब ये तो अच्छे नंबर है, इट्स अ गुड स्ट्रॉन्ग. गुरु तो अच्छा प्लैनेट होता है, सोशल लाइफ के लिए भी होता है, पैसे के लिए भी होता है. अब मेरे पास वेरिएशंस क्या है कि मुझे लाइफ पाथ से देखना है, मुझे फ्यूचर के टाइम से देखना है, मुझे नाम के साथ भी देखना है कि ये क्लैश तो नहीं करता. अगर मैंने कोई प्लैनेट लिया जो लाइफ पाथ के हिसाब से मैंने आपको एक जेम दिया, और आपका गुरु का प्लैनेट तो बड़ा सिंपल है, गुरु मींस ओनली येलो सफायर विल वर्क. येलो सफायर तो एक्सपेंसिव होता है, उसको पुखराज कहते हैं, टोपाज कहते हैं, द सफायर फैमिली. अभी तो एक्सपेंसिव स्टोन है. सफायर्स क्या करते हैं? सफायर्स ना एम्पलीफाई करते हैं एक चीज को, और येलो सफायर एन एम्पलीफायर, वो एक चीज को बढ़ा देता है. अगर आपके दूसरे नंबर्स नेगेटिव है, वो नंबर नेगेटिव चीज को बढ़ा देगा. अगर आपकी एज 30s में आ गई और आपने येलो सफायर पहन लिया और आपके बाकी प्लैनेट्स तो नेगेटिव चल रहे थे, वो नेगेटिव प्लैनेट्स को बढ़ा देगा, बिकॉज इट इज एन वेरी इफेक्टिव एम्पलीफायर. बी वेरी केयरफुल. हर एक को येलो सफायर सूट नहीं करता, जिस तरह से हर एक को पर्ल सूट नहीं करता, येलो सफायर भी सूट नहीं करता. सो यू हैव टू सी दैट मैं क्या चीज एम्पलीफाई करने जा रहा हूं. मेरे पूरे चार्ट्स में, इंक्लूडिंग द फ्यूचर चार्ट्स में, क्या एसेट है मेरे चार्ट में जिसको मैं बढ़ा के एम्पलीफाई कर दूं. सो इफ आई एम रिकमेंडिंग अ येलो सफायर, बी श्योर इट विल वर्क लाइक मैजिक. एंड इफ आई एम सेइंग येलो सफायर मत पहनिएगा, देन बी श्योर डोंट वेयर इट, अदरवाइज कोई और प्लैनेट को वो बढ़ा देगा. ओके, let's go to the last of the series for this video, number 4. Number 4 is what? Someone is born on the 4th or 13th, 22nd or 31st. अब 4 is the lord of, इसको राहु कहते हैं, lord of profession, प्रोफेशनल एक्सेलेंस के लिए पहना जाता है. लेकिन 4 में एक प्रॉब्लम है. आप 13 तारीख को पैदा हुए हैं, आप ये स्टोन नहीं पहन सकते, जिसको हम हैसोनाइट कहते हैं या गोमेद कहते हैं. दिस इज द बेस्ट सुटेड स्टोन फॉर number 4, except for someone who's born or dominated by number 13,
in the date of birth, in the life path, in the name number और in the future cycles. अगर 13 का टाइम आ गया और आपने गोमेद पहन लिया, it may backfire very badly on your body health and safety of the body. तो इसी तरह से प्लीज कभी किताब पढ़ के मत स्टोन्स पहनिएगा, यू विल फॉल इनटू ट्रबल. एंड देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोन्स लाइक नीलम है, गोमेद है, ये बॉडी हार्म बड़ी जल्दी करते हैं. अदरवाइज अगर मैंने रेकमेंड किया है तो 3 चीजों के लिए रेकमेंड होता है गोमेद. एनिमीज बिहाइंड द बैक से प्रोटेक्शन, ये कवच की तरह होता है. अक्यूमुलेटिंग मनी, इस क्या होता है कि राहु में काम मेहनत बहुत ज्यादा हो जाती है लेकिन पैसा अक्यूमुलेट नहीं होता. एंड फॉर ओवरऑल मेंटल पीस, सो गोमेद इज अ वेरी इफेक्टिव स्टोन प्रोवाइडेड वी नो हाउ टू यूज इट. एंड डेफिनेटली अगर कुछ कार्मिक नंबर्स होते हैं, जैसे 13 नंबर है, उसमें गोमेद नहीं पहनते. सो आई एंड माय वीडियो टुडे हियर. दिस वाज नंबर 1, 2, 3 and 4. I will be shooting soon and sharing with you the rest of the numbers. Please stay tuned on to my channel. See you soon. God bless us.